So now we will go through mechanism of hearing and auditory defects. So basically the sound waves जो कि हमारे ear को strike करती है, they will travel through our external auditory meatus and जाके tympanic membrane पे strike होगी and they will produce vibrations in the tympanic membrane. Vibrations from the tympanic membrane travel through the malleus and incus to the stapes bone, and this results in movement of the stapes. Movements of stapes produce vibrations in the fluid in cochlea. तो ये external ear से middle ear में गया, middle ear से अब internal ear तक पहुंच गया है. These vibrations stimulate the hair cells in the organ of corti. And stimulation of these hair cells generate action potential or auditory impulses in the auditory nerve fibers. So in this way, sound waves are converted into neural signals. When auditory impulses reach the cerebral cortex, we perceive the hearing. And thus, ear converts the energy of sound waves into action potentials in auditory nerve fibers during the process of hearing. This is what is known as sound transduction. Now, as we have seen, इसमें तीनों parts of our ear are involved: external, middle, and inner ear. So what does external ear do? It directs the sound towards the tympanic membrane. And sound waves produce pressure changes over the surface of tympanic membrane. And these pressure changes are then transmitted towards middle ear. So what does tympanic membrane do? The sound waves causes pressure changes, vibration of tympanic membrane, and thus these vibrations reach the ossicles. Now, what does middle ear do? What is the role of auditory ossicles? Ossicles are the small bones in the middle ear. The most important function is impedance matching. So, what is impedance? Impedance is जो fluid होता है middle ear में, वो थोड़ा resistance offer करता है या obstruction offer करता है sound waves को. तो इसको cancel करके bones इसको transmit करती है. So this is what is basic idea of impedance matching. So the process by which the tympanic membrane and the auditory ossicle convert sound energy into mechanical vibrations in the fluid of inner ear with minimal energy loss. This is important क्योंकि अगर sound waves dampen हो जाएगी, अगर energy loss हो जाएगा, तो we will not be able to hear properly and उतना जो sound है वो originally वैसा perceive नहीं हो पाएगा. ठीक है? And how does it do this? By matching the impedance of fluid. Without this, अगर ये नहीं हो पाएगा, तो there will be conductive deafness. Conductive deafness is due to defect in conduction of sound waves. ठीक है? So what is impedance? Impedance is obstruction or opposition to the passage of sound waves. And what is inner ear fluid? जो perilymph होता है in cochlea offers impedance, resistance to transmission due to its inertia. And what do tympanic membrane and ossicles do? These structures effectively reduce sound impedance, facilitating efficient sound transmission to the inner ear. So ये हमारा function हो गया ossicles का, है ना? तो impedance matching is the most important function of the middle ear. Because of impedance matching, the sound waves are transmitted to cochlea with minimum loss of intensity, and without impedance matching, there will be conductive deafness. So this is the most important function of the auditory ossicles. Now these are the type of conduction. Okay, how the sound waves will travel from the external ear to the inner ear, है ना? Through the middle ear. तो तीन तरह के conductions होते हैं: ossicular, air, and bone. Ossicular is through auditory ossicles. Air conduction through air in middle ear.
एंड बोन कंडक्शन थ्रू द स्कल बोन्स, हमारी जो स्कल की बोन्स होती है उनके थ्रू। तो हम यूजुअली टेस्टिंग के लिए ट्यूनिंग फोक से चेक करते हैं, तो ट्यूनिंग फोक को पहले यहाँ वाइब्रेट करते हैं एंड देन वी टच इट टू द बोन्स। सो या फिर पहले बोन्स पे टच करके एंड देन यहाँ पे लेके आते हैं। सो ऑलवेज एयर कंडक्शन इज मोर इफेक्टिव देन बोन कंडक्शन, बट जब डेफनेस होगी तो फिर ये जो एयर कंडक्शन है वो कम हो जाएगा एंड बोन कंडक्शन विल रिमेन। सो दिस इज अ बेसिक, very basic test for hearing. And what is the form of hearing loss, है ना, उसको डिटेक्ट करने के लिए ट्यूनिंग फोक से इस तरह का टेस्ट किया जाता है। एंड दिस इज द बेसिक behind this types of conduction is the basis behind this test. Now, what is the role of Eustachian tube? Eustachian tube is not concerned with hearing. ऐसा नहीं है कि वो hearing में कोई help करेगी, but जो मिडल ईयर का हमारा प्रेशर है उसको ये इक्वलाइज, उसको ये रेगुलेट करती है ना। एंड बोथ साइड्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के प्रेशर को ये रेगुलेट करने की कोशिश करती है। तो अगर मिडल ईयर में प्रेशर बढ़ जाएगा ड्यू टू यूस्टाशियन ट्यूब ब्लॉकेट, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रॉपरली मूव नहीं हो पाएगा एंड हमें कभी कभी कान बंद सा जो लगता है प्लेन में या ड्यूरिंग, जब हमें जुकाम हो जाता है ड्यूरिंग कोल्ड्स and we are not able to hear properly, that is due to blockage of Eustachian tube and change in pressures in the ear. Now what is the role of inner ear? Middle ear तक हमने देख लिया, it is impedance matching वगैरह. Now we go to inner ear and what is its main role, we'll go through it and mainly हम इसमें traveling wave के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ इनर ईयर तक गई, द मूवमेंट ऑफ फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज अगेंस्ट द ओवल विंडो causes movement of perilymph in the scala vestibuli. जो पेरिलिम्फ है स्केला वेस्टिबुलाई में वो मूव करेगा इससे। अब दिस फ्लूइड immediately hits the vestibular membrane near the oval window and displaces the fluid in the scala media. स्केला वेस्टिबुलाई से स्केला मीडिया का फ्लूइड मूव हुआ, दिस causes bulging of basal portion of basilar membrane towards the scala tympani. तो ये इस तरह से तीनों पार्ट्स में होते हुए साउंड वेव यहाँ तक पहुंच गई है। एंड इलास्टिक टेंशन इन द बल्ज्ड पोर्शन ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन इनिशिएट्स अ वेव which is called as traveling wave. This wave travels through the basilar membrane towards the helicotrema like a arterial pulse wave. तो इस तरह से ये वेव हमारी यहां से लेके और टुवर्ड्स अलोंग द बेसिलर मेम्ब्रेन टुवर्ड्स हेलिकोट्रिमा पहुंच गई। ये वी हैव ऑलरेडी डन गॉन थ्रू इन द फर्स्ट पार्ट थ्रू द स्ट्रक्चर, एक राउंड सा जो क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर था कोक्लिया का, उसमें वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स ना, स्केला टिम्पेनाई, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड उन, तो वो डायग्राम अगर आप याद करोगे तो आपको ये सब चीज इजीली समझ आ जाएगी। अब इसके बाद में क्या होता है, यहां तक पहुंच गई। अब स्टीरियोसेलिया ऑफ हेयर सेल्स इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है उसमें हेयर सेल्स होते हैं, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। Now these hair cells are tightly fixed by cuticular lamina reticularis and pillar cells of corti. Stereocilia है of hair cells in the organ of corti, ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन में पहले तो एम्बेडेड है एंड देन टाइटली फिक्स्ड है बाय क्यूटिकुलर लैमिना रेटिकुलरिस एंड पिलर सेल्स ऑफ कॉर्टी। ये दो चीजें जिनसे ये टाइटली एकदम टाइटली फिक्स्ड है। अब जब बेसिलर मेम्ब्रेन का वाइब्रेशन हुआ ड्यू टू द ट्रैवलिंग वेव, these it causes these structure to move as single unit, क्योंकि इनमें these are fixed to each other and movement of stereocilia excites hair cells generating a receptor potential. तो इस तरह से एक रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होता है जो कि हमको हियरिंग का परसेप्शन करवाता है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया। ये साउंड वेव एक्सटर्नल ईयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का वाइब्रेशन हुआ साइन वेव से, देन मेलियस इनकस एंड स्टेपिस से होके ये ओवल विंडो तक आया
ओवल विंडो से ये स्केला वेस्टिबुलाई में, स्केला वेस्टिबुलाई से ये दोनों तरह से मेनली, और इधर से इधर भी ये ट्रेवल करेगा, है ना। एंड ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, इसमें हमारे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए, ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी आ गया, ये हेयर सेल्स में रिसेप्टर पोटेंशियल्स जनरेट हो जाएंगे। नाउ इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ हियरिंग। तो सबसे पहला है हमारा साउंड ट्रांसडक्शन। साउंड ट्रांसडक्शन इज अ सेंसरी प्रोसेस अकरिंग इन द हेयर सेल्स। हेयर सेल्स क्या है? रिसेप्टर्स है। इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो जो मूवमेंट ऑफ सिलिया हुए वो मैकेनिकल एनर्जी है। दीज आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इससे क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, एंड एक्शन पोटेंशियल आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ऑडिटरी नर्व फाइबर्स. Now receptor potential and cochlear microphonic potential. Now mild depolarization occurs in cochlear hair cells when sound waves reach the inner ear. Now resting membrane potential of hair cells कितना होता है? Around 60 millivolts. And receptor potential in hair cell triggers the generation of action potential which are transmitted through the auditory nerve fibers. So ये basically ये हमारा mechanism हो गया, which is how our mechanical energy is converted into electrical impulses. So पहले sound transduction and the receptor potential or cochlear microphonic potential. These are the terms you have to remember. And I think the subheadings are very simple under this. You can easily remember this. Now, what are the properties of sound? दो properties mainly हम यहाँ पे पढ़ेंगे, pitch and loudness. Now, what is pitch? Pitch depends on the frequency of sound waves. कितने हर्ट्ज? फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड एज हर्ट्ज. सो ह्यूमन ईयर कितना हियर कर सकते हैं? बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज. एंड ग्रेटेस्ट सेंसिटिविटी है वो 2,000 to 3,000 हर्ट्ज है. हर्ट्ज मीन साइकिल्स पर सेकेंड. एंड नाउ व्हाट इज लाउडनेस? लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स, है ना. ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई, कितना है साइकिल्स पर सेकेंड. लाउडनेस हो गई एम्पलीट्यूड पे. नाउ इट इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स. थ्रेशोल्ड ऑफ साउंड वेव्स इज नॉट कांस्टेंट. इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. नाउ अप्रिसिएशन ऑफ पिच ऑफ साउंड. हम कैसे अप्रिशिएट करते हैं, कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे इसको समझते हैं हम? तो एक तो होती है प्लेस थियरी. प्लेस थियरी क्या है? दिस सेज दैट different nerve fibers from various sections of the organ of corti on basilar membrane respond to different sound frequency. कि भाई हर frequency के लिए हमारे कान में अलग अलग sections है जो कि एक्टिवेट होते हैं. तो उससे हमें पता चलता है कि कितना पिच का साउंड हमें आ रहा है. And each corresponding nerve fiber from organ of corti relays information to the brain about specific portion of organ of corti that has been stimulated. कौन सा स्टिमुलेट हुआ है पोर्शन, उसको ब्रेन को बताता है कि भाई ये स्टिमुलेट हुआ है, तो हमारे इतना इतना फ्रीक्वेंसी का वेव्स हमारे कान में आ रही है. दूसरा है ट्रैवलिंग वेव थ्योरी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा. तो वो ट्रैवलिंग वेव जो बेसिलर मेम्ब्रेन में जनरेट होती है वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आती है. तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये कहाँ पे हिट कर रही है ईयर में, जो ट्रैवलिंग वेव है. तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि व्हाट इज द पिच ऑफ साउंड. तो ये दो थ्योरीज है, द प्लेस थ्योरी एंड द ट्रैवलिंग वेव थ्योरी. Now, appreciation of loudness of sound. Perception of loudness of sound depends on activity of auditory nerve fibers. Increased sound loudness produces longer vibrations which spread over a larger area of basilar membrane. तो जो लाउड, जब साउंड ज्यादा लाउड होगी तो लॉन्गर वाइब्रेशंस होंगे, उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और लंबे लंबे समय तक होंगे.
तो विच स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन, ज्यादा पोर्शन ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे तो उससे हमें ज्यादा लाउड साउंड सुनाई चाहिए. दिस एक्टिवेट्स ग्रेटर नंबर ऑफ हेयर सेल्स एंड रिक्रूट्स मोर ऑडिटरी नर्व फाइबर्स एंड दैट्स व्हाई वी हियर अ लाउडर साउंड. As a result, the frequency of action potential also increases. So this is how we appreciate the loudness of sound. Localization of sound. How do we localize a sound? So it is the ability to detect source from where the sound is produced or the direction through which the sound wave is traveling. कहाँ से आ रही है आवाज? We immediately turn towards that side ना जहाँ से आवाज आ रही है. तो how do we localize it? हमारे ब्रेन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, ये दो सेंटर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकलाइजेशन के लिए, है ना. एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल. एनिमल्स तो टोटली इस पे सर्वाइव करते हैं एंड हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मूविंग ऑब्जेक्ट सच एज व्हीकल्स. सो बहुत लोकलाइजेशन के तो खैर बहुत सारे इंपॉर्टेंसेस है. सो कॉमन सेंस से ही हमें पता चल जाता है, but it is mainly through cerebral cortex and medial geniculate body, so this is more important. Now अब इतना हमने पढ़ा, ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ा हमने, पाथवेज पढ़े, इनका क्या मतलब है? क्योंकि कभी कभी हमारे ईयर्स में डिफेक्ट हो सकते हैं, तो ये कहाँ है, क्यों है, कैसे है और इनको ट्रीट कैसे करना है, उसके लिए हमें ये बेसिक्स पता होना जरूरी है. तो ऑडिटरी डिफेक्ट पहली चीज पार्शियल हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है. किसी को कम सुनाई देता है, कोई पूरा बहरा होता है. सो दिस इज द डिफरेंस है ना. सो पार्शियल हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है. कंडक्शन डेफनेस एंड नर्व डेफनेस, ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, इट शुड बी DEAFNE. सो कंडक्शन डेफनेस एंड नर्व डेफनेस. कंडक्शन में क्या होगा? जो कंडक्शन हो रहा है साउंड का, उसमें डिफेक्ट होगा, है ना. तो इट इज ड्यू टू इम्पेयरमेंट इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स एक्सटर्नल या मिडल ईयर, दोनों में ये प्रॉब्लम हो सकती है. क्या कॉज हो सकता है? अब हम अगर एक्सटर्नल ईयर से चले तो एक्सटर्नल ईयर में का ब्लॉकेज हो जाए किसी भी कारण से, है ना. ड्राई वैक्स हो या किसी बच्चे ने कुछ फॉरेन बॉडी डाल ली हो. देर आर चिल्ड्रन पर्ल्स डाल लेते हैं, पेंसिल्स डाल लेते हैं. देन थिकनिंग ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ड्यू टू इन्फेक्शन, कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में और वो थिकन हो जाए. देन परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फ्रॉम अनइक्वल प्रेशर, है ना. जब भी ईयर इन्फेक्शन होता है या हमें कोल्ड होता है तो प्रेशर इंक्रीज हुआ मिडल ईयर में, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अपना यूस्टाशियन ट्यूब ब्लॉक हो गई एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे ज्यादा प्रेशर हो जाता है, मिडल ईयर में फ्लूइड या पस भर गया तो वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में एक होल परफोरेशन होगा. इट इज वेरी पेनफुल एंड देन इट विल डिस्चार्ज फ्रॉम देयर. अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब परफोरेट हो गया, उसमें एक छेद हो गया है, तो वो साउंड वेव से वाइब्रेट तो करेगा नहीं, तो फिर उससे डेफनेस हो सकता है. देन इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर, ओटाइटिस मीडिया, तो इसमें कंडक्शन नहीं हो पाएगा. जो मिडल ईयर है उसमें आपको अगेन मोस्ट कॉमनली ड्यू टू कोल्ड होता है. ये कोल्ड में मिडल ईयर में फ्लूइड भर जाता है या पस भर जाती है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है. अगेन द ट्रांसमिशन और कंडक्शन ऑफ साउंड विल बी डिफेक्टिव इन दिस. Then fixation of step is foot plate, again the oval window. Otosclerosis. Sclerosis means thickening and elasticity खत्म हो जाती है, हम ये कह सकते हैं उसमें. तो वो फिक्स हो गई जाके ओवल विंडो पे, तो उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा. ओवल विंडो का मूवमेंट नहीं होगा तो अंदर नहीं जाएगा जो भी हमारा साउंड वेव्स का इम्पल्स है. सो ये मेनली हमारे कंडक्शन डिफेक्ट्स हो गए. सो आई थिंक इट इज वेरी सिंपल. आप एक्सटर्नल ईयर से चलो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जाओ एंड देन मिडल ईयर पे जाओ, तो यू कैन इजीली एक्सप्लेन दैट. देन अंदर अगर हम जाते हैं इनर ईयर पे तो नर्व डेफनेस हो सकती है. नर्व डेफनेस का क्या मीनिंग हुआ? इसको सेंसोरी न्यूरल डेफनेस भी कहते हैं. जो न्यूरल एलिमेंट्स है दीज दैट दोज विल बी इन्वॉल्व caused by damage of any structure in cochlea or lesion in auditory pathway. कैसे हुआ? डिजेनरेशन ऑफ हेयर सेल हो गया, आपके हेयर सेल से डिजेनरेट हो गए, है ना. एज रिलेटेड हो सकता है, बहुत बार कुछ ड्रग्स से या टॉक्सिन से हो सकता है, तो डिजेनरेशन हो गया हमारे हेयर सेल्स का.
damage to cochlea by prolonged exposure to loud noise. This is very very important for nowadays, क्योंकि हम जब लाउड नॉइज सुनते हैं स्पेशली हेडफोन्स लगा के, तो इट कैन कॉज डेफनेस, एंड देन आपको हियरिंग एड्स यूज करना पड़ेंगे। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ज्यादा हेडफोन्स मत लगाओ, नहीं तो परमानेंट हेडफोन्स लग जाएंगे। देन एनी ट्यूमर अफेक्टिंग द एट्थ क्रेनियल नर्व, जो हमारी ऑडिटरी नर्व है, उसको कुछ ट्यूमर हो गया या उसमें और कुछ डिफेक्ट हो गया तो उसके कारण। ठीक है, तो हम हेयर सेल्स से चले, कोक्लिया पे गए, एंड देन एट्थ नर्व। इन तीनों में अगर कुछ भी डिफेक्ट होगा तो डैमेज होगा। मान लो कोक्लिया, उसके हेयर सेल, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, बेसिलर मेम्ब्रेन, कोक्लियर डक्ट, इनमें कुछ भी होगा तो ये नर्व डेफनेस कराएंगे। सो थोड़ा सा आई थिंक इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। थोड़ा सा आपको ये वाला पार्ट में भी कंफ्यूजिंग लगा हो, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट, है ना। वी कैन कोरिलेट इट विद द स्ट्रक्चर डायग्राम एंड इट विल बी वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. Go through it once, and I think you all will be very easily understanding it. Thank you so much.